Hello, hello. Hello. Am I audible? Oh, yeah. Sanjeev, Yeah, good you are morning. audible. Yeah, you are audible. Okay, you may start now. Hmm. Good morning. Today is 5th October 2020. We, the Department of Botany, Dhing College, Arigyo Yoga Niketan Kendra, Dhing, in association with Eco Club Dhing College, have organized a national webinar on yoga, the natural immunity booster. At the very outset, I, on behalf of the organizing committee, welcome you all to this webinar. At the very outset, Dr. Biman Hazarika, principal of Dhing College, is here, and I request him to give a welcome address and formally inaugurate the national webinar on yoga. Thank you very much. So, please, Biman Hazarika sir, you give your welcome address and kindly inaugurate the webinar. Over to you. Very good morning to everyone. I am Dr. Biman Hazarika, Principal Dhing College, Dhing Nagaon, Assam. Welcome you all to this very special session of webinar being organized by Department of Botany in association with Eco Club Dhing College and IQAC Dhing College. At the very outset, I would like to extend my heartiest thanks and well wishes to esteemed resource persons who have joined here, and we hope surely they will enlighten us with their thoughts and teaching processes and experiences so far they have gathered. So, Jugo and naturopathy is two very important words in today's COVID-ridden, pandemic-ridden globe. We have been suffering a lot due to this pandemic and so many diseases that have gripped the entire human health from time immemorial. So, before beginning the session, it's my duty to say a few lines about Zugo. Zugo is derived from a Sanskrit word which invariably means root. And in Indian context, if we look back to the age of Swami Vivekananda, then we find that Swami Vivekananda was the first person who popularized Jugo in different platforms, particularly in USA. He had been to USA and delivered a talk over there, and he impressed the entire community over there, and they started practicing Jugo long back 100 years. And I must say, our college is located just beside the birthplace of Mahapurush Srimanta Shankardeva, and he was the harbinger of Jugo education, Jugo practices in this region. And Mahapurush Srimanta Shankardeva introduced Jugo a long back, 600 years ago. He practiced Jugo, and it is known and it is said rather that with the practice of Jugo, he overpowered a rough bullock, an ox, and he swam across
the mighty Brahmaputra in rainy season. It is because of the Juga practice Mahapurush Gurujana lived up to the age of 110 years. It is said and it is written in different sources. Now coming on to the main aspect of this today's webinar, which is being organized by Department of Botany, and this is the 7th webinar being organized in our college. And here I must say that Juga works on the level of one's body, mind, emotion, and energy. And it's a blanket practice, prescriptions with which we may develop, we may heal ourselves from different diseases, from different calamities, pandemics like that. This has given rise to 4 broad classifications. The Juga has been included into 4 broad classifications, and that will be definitely been narrated by our and explained by our resource person. So the purpose of Juga is to build strength, awareness, and harmony in both mind and body, and explains Natalie Nevins Doe, a board certified osteopathic family physician and certified Kundalini Juga instructor in Hollywood, California. Juga education helps many ways. It helps in self-discipline and self-control. Being a head of a educational institutions, I must say that the Juga obviously help our students, and that helps in leading to immense amount of awareness, concentrations, and higher level of consciousness that is required in education life. Briefly, the aim of Juga can be of this type. First one is to enable to have a good health. I have already narrated. The next one is to develop a hygiene. It's based on 5 broad principles. Proper exercise, that is called asana or ahon. Proper breathing, that pranayama, that is being practiced by the Mahayogis like Patanjali, Panini, etc. Proper diet and nutrition, which is being uttered by various dietitians, various practitioners, medical practitioners right now. And positive thinking and meditation. This is very much lacking in nowadays life. So if a student can properly practice this type of things from the very beginning of their life, very beginning of their education life, then they will be highly benefited out of this oldest practice, Juga. Juga is, as far my knowledge goes, it starts 5,000 years back in India and its adjoining countries. Basically, it's grown in India and developed in India, and it's spread to far and wide areas. So, without spending and talking much about Juga, since most of our resource persons are here, they will definitely shed new light on this aspect, Juga and naturopathy. But I must add 2 lines regarding 2 institutions which are taking very serious role in spreading Juga education in Dhing and Nagaon area. That is the Purbanchal Juga Niketan, which has imparted a very important role, played a very important role in spreading Juga education in Dhing and its adjoining area. And of late, another organization, Arogya Juga Niketan, which is now associated with this program, they are also playing a very important role, and they expounded in different fields. They spread the knowledge of Juga, they spread the exercises, they took part in various competitions, the Juga exercises. They played a very important role in spreading the Juga education and popularizing this old but very important health, hygiene, and mental exercises being practiced our great ancestors. And with these words, I would like to thank the Department of Botany
particularly Dr. Sanjeev Nath. He is our webinar coordinator, and I extend my heartfelt thanks. And I extend my heartfelt thanks to all the resource persons who have been associated, who joined us already. And with these words, I would like to conclude my brief speech of introduction note, and I hand over my charge to our anchor, Dr. Sanjeev Kumar Nath. Thank you. Thank you, Dr. Viman Hazarika, Principal, Dhing College, for his inaugural address and for inaugurating the webinar. Now, I'm very happy to say that we have a resource person on yoga, Dr. Binod Kashyap. So before giving his deliberation, let me give a brief introduction of Dr. Binod Kashyap. Dr. Binod Kashyap is a National Joint General Secretary, International Naturopathy Organization, INO. He got diploma in naturopathy from Uttarakhand Open University 2012. He did his graduation from Delhi University in 1988 and diploma in naturopathy from All India Nature Cure Federation, New Delhi in 1991. His present social responsibilities includes he is the chairman of National Institute of Holistic Health. He is chairman of Mahakal Shakti Mandal Trust. He is the national head Indo-Vietnam Medical Board. He is the adjudicator of India Book and Asia Book of Records. He is the general secretary of Mahakali Adyasaktapich. He is the general secretary of Delhi Institute of Naturopathy. He is a national joint general secretary of International Naturopathy Organization, a very well-known organization who is very much involved with yoga and other natural sciences. He is the Jila Proud Karya Pramukh, Rashtriya Shyam Sevak Sangh, Jila Gandhinagar, Delhi Prant. He is presently the member of Syllabus Subcommittee of National Institute of Open Schooling, Ministry of Education, Government of India. Some of this unique contribution includes he is working in the field of naturopathy since 1991. He organized National Conference on Naturopathy for 2,500 delegates from all over India in 2001. He organized doctors management training camp every year since 2003 to 2014 for 600 to 700 naturopaths. He organized international conference on yoga naturopathy in Bengaluru, Karnataka in the year 2012 for 5,000 delegates from 30 countries. He is the former administrative officer, Balaji Nirogdham, a 150-bedded Indore Nature Cure Hospital in Delhi. He is the former chief medical officer, Vivekananda Natural Cure Hospital, Delhi. He is the joint general secretary, International Naturopathy Organization, INO. He organized Holistic Health Mela in December 2015 at Vivekanand, Delhi, where more than 10,000 visitors were present every day. He got many awards. Some of the few are Jeevan Gaurav Saman in naturopathy at Solapur, Maharashtra. Prakritik Chikitsha Shiromani Saman by Delhi Institute of Naturopathy at New Delhi. He is the best hospital administrative award in New Delhi. He is the best NGO for the propagation of naturopathy by Lok Sabha Speaker in 2014.
20. Apart from that, he visited most of the states to propagate naturopathy through conferences, seminars, camps, and meetings with government officials as well as ministers. So, these are some of his contributions of Dr. Vinod Kashyap. And now I request our honorable uh, resource person and guest to deliver his uh, speech on yoga. So, Dr. Binodji, I now request you to start your deliberation. Thank you very much to Sanjeev ji, and I welcome to all viewers and Principal of Dean College, Dr. Biman Hajarika sir, Dr. S.K. Nath, coordinator of this national webinar. This is A.D. Bora, the HOD of this botany department, and Dr. N.K. Sekia, associate professor, and Rupakar, she is an instructor of yoga. I am very thankful to all of you that this time in the pandemic situation, we have organized such a great seminar on the topic of the yoga, the natural immunity booster. जैसा कि आप सभी जानते हैं सर कि पूरा विश्व इस समय जिस बीमारी से पीड़ित है, जिसे हम कोरोना कोविड-19 बोल रहे हैं, और मेरे विचार से ये ऐसी पहली बीमारी है जो एक साथ पूरे वर्ल्ड में फैली है। आज तक कोई ऐसा बीमारी नहीं था, कोई ऐसा रोग नहीं था जो एक ही बार में पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, लेकिन ये ऐसी बीमारी रही जो पूरे वर्ल्ड में फैली है, जिसके कारण लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से प्रभावित हुए, टूट गए। लेकिन इसके बावजूद जो लोग जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, या जो लोग रेगुलर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या जिनके जो डेली का जो रूटीन है, जिसमें उनका जो डाइट है वो बहुत नॉर्मल है, यानी नेचुरल डाइट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या जो लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर हैं, जिनके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है, ऐसे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, ऐसे लोग इस बीमारी से बचे हुए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो योग का है। योग 5000 वर्ष पुरानी ऐसी पद्धति जो भारत में भारतीयों की जीवनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग थी, हमारा एक पार्ट थी लाइफ का, कि हमें किसी ना किसी रूप में उसको अपने साथ जोड़े रखा। लेकिन धीरे धीरे पिछले जो 300, 400, 200 वर्ष में जो पीरियड गुजरा भारत में, जिसमें बाहर से लोग आए, हमारे ऊपर राज किया और जो हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करी, हमारी शिक्षा प्रणाली पे बहुत बड़ा उसका प्रभाव डाला, और अंततः उस चीज से हम लोग कटने लगे। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने ये संकल्प लिया कि हमारी जो भारतीय प्राचीन धरोहर है योग, ये भारत तक सीमित क्यों रहे, ये पूरे विश्व में क्यों ना फैले। इसके लिए उन्होंने यूएनओ में अपनी आवाज उठाई, वहां एक प्रपोजल भेजा, और यूएनओ ने इसको एज ए योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में इसको लागू किया, और 172 देशों ने उसी समय अपनी स्वीकृति दी, और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लागू हो गया। और केवल लागू ही नहीं हुआ, जितने देश थे 172 के बाद में जब पहला योग दिवस हुआ 2015 में, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, अपने कंट्रीज में योग के प्रोग्राम्स कराए उस दिन 21 जून को, 21 जून एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा।
और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, भारत विश्व गुरु था, है और आगे भी रहेगा अपनी संस्कृति की वजह से। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसीलिए बोलते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और योग, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है योग यानी जोड़ना। योग केवल आसन नहीं है। हमारे ध्यान में क्या लगता है, हम लोग क्या सोचते हैं योग के बारे में, एक जो इसकी धारणा बनी हुई योग के बारे में कि योग मतलब कुछ पर्टिकुलर आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, ये योग है। ये तो योग के एक पार्ट है। योग का मतलब जोड़ना है। हम हर समय योग में रहते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब योग का पार्ट है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग को जो सूत्र में उन्होंने बांधा, उन्होंने योग को 8 अंगों में डिवाइड किया। इसे बोलते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों में योग को पूरा उन्होंने बांध दिया कि योग मतलब ये है, अष्टांग योग, दैट इज योगा। लेकिन ऐसी धारणा बनी हुई है लोगों के मन में, लगभग 95% लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि योग मतलब केवल आसन कर लेना ही केवल योग है। ऐसा नहीं है। योग में सब कुछ समाया हुआ है। और आज की आवश्यकता, जो इस समय पैंडेमिक में योग का क्या रोल है और हमारा क्या रोल है कि हम इतनी बड़े इसको फैलाएं, इसके बारे में बताएं। क्योंकि यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ऐसे किसी भी प्रकार के वायरस, लगभग हजारों की संख्या में वायरस हैं, वायरस डेली आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर पर उसका असर नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए एक परिवार में, एक फैमिली में 5 लोग हैं, लेकिन एक मच्छर ने काटा सभी को है, लेकिन मलेरिया या डेंगू किसी एक व्यक्ति को हुआ, बाकी 4 को नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर वीक थी, इसलिए उसको हुआ। बाकी लोगों की स्ट्रांग थी, इसलिए नहीं हुआ। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवनचर्या है, उसमें जीवनचर्या में योग को शामिल करना बहुत जरूरी है। और मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, डीन कॉलेज को, कि आपने इतने अच्छे विषय पे ये एक वेबिनार, नेशनल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। और मैं ऐसे ही आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आपके कॉलेज में योग के लिए कोई कोर्सेज भी स्टार्ट होने चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, डिग्री कोर्स हो, ये भी आपको जोड़ना चाहिए। क्योंकि योग आज की आवश्यकता है, पहले भी थी, आज की भी और आगे की भी है। लेकिन जितना प्रचार, जितना अवेयरनेस योग के विषय में आज हो रही है, वो पहले उतनी नहीं थी। वो केवल कुछ साधु, सन्यासी, मठ, आश्रम तक सीमित था योग। आम लोगों के लिए योग इतना नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ समय से। लेकिन अभी लोगों को इसके विषय में जागरूकता बहुत बड़ी है। अमेरिका में तो स्पेशली ऐसे एक वर्ल्ड में सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा योग जो डेली करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो पता लगा अमेरिका में सबसे ज्यादा योग होता है प्रोफेशनली। और मजे की बात यह है कि योग हमारा है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, लेकिन कोई कराते हैं। यानी वो कोर्स अगर चला रहे हैं, यदि अमेरिका की कोई संस्था उसको सर्टिफाई करती है, तो लोगों को लगता है नहीं ये कोर्स बेटर है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेशन बोर्ड नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आयुष मंत्रालय के बनने के बाद से योग और नेचुरोपैथी में बहुत बड़े काम हुए हैं। जैसे पहला काम, सबसे बड़ा क्या, मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई, जो आज तक कभी इसका मंत्रालय नहीं बनाया गया था। आईएनओ की डिमांड पर हम लोग पिछले 18 वर्षों से लगातार केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे थे कि
योग, नेचुरोपैथी और आयुष सिस्टम के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया जाए। उसमें केवल एक विभाग था, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके केवल डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। लेकिन हमारे प्रयास से और इसका अलग से मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय बनने के बाद उसमें डेवलपमेंट क्या हुई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को डिक्लेयर कराया गया, पहला अचीवमेंट। दूसरा, नेचुरोपैथी के विषय में भी हम लगातार सरकार से प्रयासरत थे कि नेचुरोपैथी डे, क्योंकि हम 2002 से आज रिक्वेस्ट करता था कि नेचुरोपैथी डे, क्योंकि हम तो 2 अक्टूबर को मनाते थे, हमारी रिक्वेस्ट है कि 2 अक्टूबर नेचुरोपैथी डे के रूप में घोषित किया जाए। तो महात्मा गांधी जी खुद अपने ऊपर नेचुरोपैथी का प्रयोग करते थे और अपने जितने भी उनके संपर्क में रहते थे लोग, उस सभी को नेचुरोपैथी से ठीक करते थे। तो सरकार ने हमारी डिमांड मानी और 2018 में 18 नवंबर को एज ए नेचुरोपैथी डे डिक्लेयर किया गया। ये बहुत बड़ा इस मंत्रालय का। तो योग में और कितनी कितनी इसमें अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये अभी आपको जानकारी के मैं बताना चाहूंगा कि वेलनेस सेंटर पूरे देश में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर खुलने जा रहे हैं और उन वेलनेस सेंटर में एक योगा इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा। इतना बड़ा इसका स्कोप है। यानी हमारे सामने चुनौती क्या है कि हमारे सामने योगा इंस्ट्रक्टर, जो स्किल्ड योग इंस्ट्रक्टर हमारे पास नहीं है। हम सब योग करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन ऐसा इंस्ट्रक्टर चाहिए जो योग कराए, सिखाए और पढ़ा भी सकता है। तो ऐसे की अवस्था इस पीरियड में अगले 1-2 साल में बहुत तेजी से आने वाली है, जहां डिमांड इसकी बढ़ने वाली है कि योगा इंस्ट्रक्टर हर जगह अपॉइंट किए जाएंगे। 1.5 लाख वेलनेस सेंटर, ये आयुष मंत्री माननीय श्रीपद नाइक ने घोषणा कर दी थी 2018 में और 2019 में फिर दोबारा से बोला है। मोदी जी भी इसको कई बार कोट करते हैं कि क्योंकि अभी क्या कि आईएनओ की डिमांड थी पिछले 20 वर्ष से कि नेचुरोपैथी के लिए 5% बजट यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो अल्टीमेटली हेल्थ बजट जो है कम हो जाएगा। यानी यदि हम ऐसा सिखाए लोगों को कि आपने डेली योग करना है, डेली अपना संतुलित आहार लेना है, व्यायाम करना है, या जो जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको हमने सहारा लेना है, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। जब बीमार नहीं पड़ेगा तो सरकार पे उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए खर्च का बोझ कम हो जाएगा और वो हमारे भारत सरकार का स्वास्थ्य बजट बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य आज के इस सेमिनार में यही है, क्योंकि समय मेरे पास कम है, मतलब समय की मर्यादा है, मैं उसको ध्यान में रखने वाले और उनको बधाई देता हूं कि आप अपने इस कॉलेज में योग का कोई डिपार्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाला समय इसका है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई, एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी बताया गया है, आप सबने उसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि हमारा देश जो है ये युवा भारत है, अधिकतम संख्या जो इस देश के रहने वालों की है उसमें युवा बहुत ज्यादा है। तो हम युवा जो भी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई के साथ में वो स्किल्ड भी होने चाहिए, जिसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। यदि योग को वो अपनाते हैं, पढ़ते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं समाज का, देश का भला होने वाला है। परिवार, व्यक्ति स्वयं ठीक होगा, उसका परिवार स्वस्थ होगा, उसका समाज ठीक होगा और राष्ट्र ठीक होगा। राष्ट्र ठीक होगा तो पूरा विश्व ठीक होगा। हम पूरे विश्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ये हमारी भारतीय अवधारणा है और इसी को हम सोचते हैं, ऐसा ही हम चाहते हैं कि सब पूरा विश्व स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, कोई प्रसन्न रहे। तो उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो व्यक्ति डेली योग करता है, डेली ध्यान करता है, अपने आहार को संतुलित रखता है, अपनी दिनचर्या को नियमित रखता है, अपने विचार को सात्विक रखता है, सकारात्मक रखता है, तो वो व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ रहेगा,
फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज के आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और फिर से निवेदन करता हूं कि ढींग कॉलेज में योग के कोई ना कोई कोर्स स्टार्टिंग में आप 3 मंथ्स का स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 6 महीने का कर सकते हैं, फिर 1 ईयर कर सकते हैं और बाद में उसको एक डिग्री कोर्स भी ले सकते हैं। ये मेरी प्रार्थना है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी को। आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बड़े ध्यान से सुना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Vinod Kashyap, for your motivational speech, resourceful speech on yoga, its importance. You stressed on that health is wealth, that we always should keep in mind. So once again, thank you very much. So participants, here is our next program. For this, we have invited Rupa Kaur, a national yoga player. She is the instructor and co-founder of Arigya Yoga Kendra, Dhing. She is also the block coordinator of International Naturopathy Organization, INO. A science graduate with geology major from Dhing College, she did her diploma in yoga education. She qualified as a state yoga referee of Assam Yoga Association. She did diploma in herbal medicinal science. Some of her achievements include: she got bronze medal in District Yoga Championship Nagaon in 2016, silver medal in Namami Brahmaputra Festival Nagaon 2017, 4 gold medals in District Yoga Championship Nagaon 2017, 1 gold, 3 silver and 1 bronze medal in State Yoga Sports Championship Assam in 2017. She secured 6th position in National Yoga Sports Championship held at Ghaziabad in 2017. She got 6th position in Artistic Pair category in 2nd Federation Cup held at Karnataka in 2017. She got 6th position in Artistic Pair category International Yoga Championship Dharmasthala, Karnataka. She got 3 gold medal, 1 silver medal in Assam State Yoga Championship held in 2018. She got 6th position in Rhythmic Pair in National Yoga Championship Patiala 2018. She procured silver medal in All India Yoga Confederation Cup 2019 held in Odisha. And now she is an instructor of Arigya Yoga Kendra, Dhing. So I now request Rupa Kaur to exhibit some pranayams and asanas for which we will be very benefited. So thank you very much. Now I request Rupa Kaur to start her performance along with her description. थैंक यू सर। यहाँ पे उपस्थित सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धीमान सर, प्रिंसिपल ऑफ ढींग कॉलेज, संजीव सर, coordinator of the national seminar, and Dr. Vinod Kashyap sir, the joint secretary of International Naturopathy Organization. Thank you so much for giving me this opportunity. So, आप सभी को योगा के बारे में हमारे रिसर्च पर्सन ने बहुत अच्छे से समझाया है। योगा से क्या होता है, क्यों करा जाता है और इससे इम्यून सिस्टम के साथ कैसे लिंक अप होता है, ये सब कुछ बताया गया है। आशा करते हैं कि आप लोग उपकृत हो और अभी कौन से योगा से कैसे
इम्यून सिस्टम हमारा हाई होता है और कैसे हम लोग किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, और वो भी नेचुरली, वो हम आसन कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आशा करते हैं कि सब उपकृत हो, सबको अच्छा लगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक मंत्र के साथ। ओम संवोचद्धं संवोदद्धं संवो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते सज्जनाना उपासते सज्जनाना उपासते। Before practicing any kind of yoga, we should do some warm up, and it will help to do any kind of yoga so easily. So Surya Namaskar is said to be the best yoga technique, best warm up in yoga practice. Surya Namaskar, also called Sarvanga Sundara Asana, which means full body warm up. The solar plexus that is located behind our navel is connected to the sun, the main source of energy of the earth. Regular practice of the Surya Namaskar enhance the size of solar plexus, which increases our creativity level, decision making capacity, confidence, and leadership skill. Surya Namaskar consists of 7 asanas, which performed in cyclic order by creating a total number of 12 asana. So let's start our So here we start our Surya Namaskar. First Pranamasana. Second is Ardha Chakrasana. Slowly exhale and Padhastasana. Again inhale. Aswasanchalana. Exhale. Parvatasana. Inhale and exhale. Ashtanga Naman. Next inhale. Bhujangasana. Exhale. Parvatasana. It helps to keep us disease free, improves blood circulation in our body, and this is the technique which helps to trigger all the systems of our body. Then next, same the rotation. Inhale, exhale, and Pranamasana. Moving to our next asana, that is, so here we end up with our warm-up practice. So next, we'll do some asana, that is Ardha Chandrasana. It improves lungs capacity, stimulates pancreas and controls high blood sugar. It cures respiratory disorders, and it's very helpful in back pain. It's a back bending asana. Moving to our next asana is sitting posture.
called Ardha Machandrasana. It's a twisting posture. It gives a flexible spine. It cleans the internal organs, improves digestion. It can stimulate liver, kidney, lungs, heart. It releases the excess toxins from our body. Slowly relax. It can be done with both sides. So moving to our next asana. Let's see. Gomukhasana. This is a full body massage asana. It makes the pancreas active, beneficial for liver and kidney, helps in controlling diabetes also. It's a very easy posture. Stretches our upper body part. Relax. Our next asana is also a sitting posture. नेक्स्ट आसना इज शशंकासना. धीरे धीरे तो पैरों को गैप करके इनहेल, स्लोली हैंड्स अप, exhale and down. Stretch your body. This asana is a brilliant pose to build strong immune response. It is good for nervous system, but it can't be done who have back pain problem. So basically, who have back pain problem should avoid front bending asana, and it's a front bending asana. Moving to our next yoga practice. Shetu Bandhasana, the bridge pose. It improves blood circulation, it increases energy in the body, and keeps our body strong to fight against any pathogens. It's also helpful for back pain, thyroid, high BP. It's a back bending asana. It improves digestion. Relax. Our next asana is Sarvanga Asana, the queen of asanas. This asana is also called the queen of asanas. It improves digestion, good for thyroid, reduces fatigue, relieves stress, tone our body. ये आसन जो प्रैक्टिस जो लोग इस आसन को कंप्लीट उठा नहीं पाते हैं उनके लिए और एक इजी पोस्चर भी है. आप वाल के साथ
अब पूरा हिप तक ज्वाइन करके पैर को स्ट्रेट करके आप लोग इस आसन का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन स्लोली स्लोली आप करने की कोशिश कीजिए। ये हाथ पे पूरा जोर रहता है, हाथ पे जोर दे के उठाना पड़ता है, और ये शोल्डर बैलेंस पोस्चर भी है, नेक और शोल्डर पे इसका बैलेंस रहता है। और जिनका एक्सेसिव हाई बीपी है वो इस आसन को अवॉइड करें। सो वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट आसना, दैट इज भुजंगासना, a back bending posture. It stimulates abdominal organs, open heart and lungs, relieve stress and fatigue, बैक पेन, एंजाइटी के लिए ये बहुत अच्छा है, और थायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। पैरों को पूरा स्ट्रेट करके रखना है, टोस को पॉइंटेड, लेग मसल्स टाइट, एंड एक्सेल रिलैक्स। इसको इनहेल करके आप करना है और एक्सेल करके रिलैक्स करना है। जैसे इम्यून सिस्टम, अभी हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि इम्यूनिटी को हाई हमको बढ़ाना है, हाई करना है, और इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन भी बहुत यूज किया जाता है आजकल। जो कि ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, इसके लिए तो बहुत पहले से ही बोला गया है कि इम्यूनिटी जिनका हाई होगा उनको ये बीमारी कुछ नहीं कर सकता, और अगर किसी को हो भी गया, अगर इम्यूनिटी हाई होता है तो ये इस बीमारी से जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। तो अभी आ गया इम्यून सिस्टम है क्या ना। इम्यून सिस्टम कोई एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं है, ये कंप्लीट बॉडी का ही सिस्टम होता है। जैसे जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है, मेटाबॉलाइजिंग पावर स्ट्रांग है, नर्वस सिस्टम एक्टिव है, देन आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा है, तो उनका एज ए होल इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, तो उनको भी कोई बीमारी जल्दी से, ये कोविड-19 के बारे में नहीं बोल रही हूँ, और जो भी बीमारी हो, जैसे सर्दी जुकाम भी हो गया या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी भी इतना जल्दी से इफेक्ट नहीं कर पाता। अगर इफेक्ट करता भी है तो भी ये जल्दी रिकवरी भी हो जाता है। तो अभी जो हमने आसन किया, सूर्य नमस्कार से लेके भुजंगासन तक, इस आसन में बस ये कुछ ही आसन है जो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के साथ लिंक्ड अप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शो किया। अभी समय भी इतना ज्यादा नहीं है कि हम लोग सब आसन करें, क्योंकि योगा इज नॉट लिमिटेड, तो इसका परिसीमा बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर हम सम अप करें एक छोटे से वेबिनार में, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर भी हमने ट्राई किया कि जितना हो सके हमको दिखाए। अभी नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्राणायाम में, जो कि प्राणायाम प्राण का आयाम। प्राण मतलब क्या है? वाइटल एनर्जी, और आयाम मीन्स इसको इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो प्राणायाम हमारा जो बहुत सारे ऐसे पोस्चर है, ध्यानासन है जिससे हम लोग कर सकते हैं। जो फर्स्ट किया वो है पद्मासना। यहाँ पे बस हम 2 ही ध्यानासन दिखाएंगे। और नेक्स्ट है सिद्धासना, एक पैर को ऊपर और दूसरे पैर को नीचे। जो लोग पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सिद्धासन में भी बैठ के प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर कोई अगर है जिनका बैक पेन का प्रॉब्लम होता है या फिर नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए भी एक उपाय है। आप कोई भी स्ट्रेट चेयर पे बैठ लीजिए, बैठ के बैक को स्ट्रेट करके आप लोग कर सकते हैं। या फिर कहीं पे भी हो, जिनका मैं बैक पेन के बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि जिन लोगों का बैक पेन होता है वो लोग अगर नीचे बैठ के ऐसे फ्लोर पे बैठ के अगर करे तो इफेक्ट बहुत कम होता है प्राणायाम का, और इसका साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप लोग नीचे ना बैठे, जितना हो सके आप लोग अगर चेयर पे बैठ ले तो अच्छा है, या फिर कहीं पे भी बैठे, पीछे अगर वॉल हो तो वॉल पे सपोर्ट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट प्राणायाम में जाते हैं। आंख बंद, फर्स्ट बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इनहेल
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. इससे बॉडी रिलैक्स होता है। नेक्स्ट प्राणायाम में हम स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। हाथों के साथ भस्त्रिका करने का बहुत सारा टेक्निक होता है। उसमें से एक ये है, हाथों के साथ सांस को लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इनहेल डीपली, exhale down, inhale, exhale. हमारे बॉडी का दो सबसे बेसिक नीड होता है, एक तो है फूड एंड दूसरा है ऑक्सीजन। हम जब प्राणायाम करते हैं तो जो ऑक्सीजन का नीड होता है वो फुलफिल होता है। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, लंबी सी सांस लेंगे, लंबी सी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसको फास्ट करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम को। जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो दो बेसिक नीड होता है, जिससे ऑक्सीजन का नीड इस प्राणायाम से फुलफिल होता है। जो आसन हमने बोला था कि चेस्ट एक्सपांड होता है, जैसे आपका सेतुबंधासन, देन भुजंगासन, इन सब आसनों से चेस्ट एक्सपांड होता है। अभी चेस्ट एक्सपांड हो गया, चेस्ट ओपन अप हो गया, लंग्स ओपन हो गया, तो यहाँ पे इसका नीड होता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन को हमको बाहर से इनहेल करना पड़ता है। तो जब हम भस्त्रिका प्राणायाम या फिर कोई भी प्राणायाम करते हैं, वो एक्सेसिव मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इनहेल होता है, तो जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम और भी एक्टिव हो जाता है। और जितना भी हमारे बॉडी में सिस्टम्स है, जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और जो भी सिस्टम्स है, सबका लिंक्ड अप रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता है। और जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हाईली एक्टिवेट होगा और बहुत अच्छे से होगा, तो बाकी सब सिस्टम में भी उसका प्रभाव पड़ता है और उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम भी हमारा हाई होगा, तो हम कोई भी बीमारी से आसानी से लड़ पाएंगे। चलिए इसको थोड़ा देर और कंटिन्यू करते हैं। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, वो लोग अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। लंबी सी सांस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे बॉडी पूरा शांत हो जाता है और माइंड पूरा काम डाउन हो जाता है। थोड़ा सा होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। एंड अगेन दोनों हाथ को रिलैक्स करके नीचे ऊपर। अगेन थोड़ा देर नॉर्मल ब्रीदिंग, इसी ब्रीदिंग को कंटिन्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट प्राणायाम में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम।
इसके बारे में, ये नाम तो बहुत सभी ने सुना होगा इस नाम के बारे में। अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम मीन्स सांस को लेना एंड विलोमा मीन्स छोड़ना, सांस को छोड़ना। तो सम टेक्निकल प्रॉब्लम, चलिए अभी अनुलोम विलोम फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया कैसे बैठा जा रहा है, या फिर सिद्धासन या पद्मासन, या फिर कोई भी, जैसे पहले भी बताया गया है कि बैक पेन जिनका है वो अच्छे से आराम से जैसे भी हो बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। तो इसका अनुलोम विलोम का कुछ प्रोसेस होता है। हम लोग ये 2 उंगली को ही यूज करेंगे, थंब एंड रिंग फिंगर, और बाकी 2 इंडेक्स और मिडिल फिंगर को बैंड करके ऐसे रखेंगे ताकि इसका मिस यूज ना हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पे लेफ्ट साइड से सांस को लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारा जो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल दोनों सेम टाइप से काम नहीं करता है, सेम प्रोसेस से काम नहीं करता है। जैसे हम लोग अगर कभी, आप लोग खुद भी ट्राई करके देखिए, अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। राइट से जब आप लोग सांस लेंगे तब अगर आप लोग सांस लेके देखिए, या तो राइट से आपका ज्यादा आप इनहेल कर पाएंगे या फिर लेफ्ट से आप कर पाएंगे, कोई भी एक। यूजुअली ऐसा ही होता है, जो लोग प्राणायाम, मेडिटेशन का, योगा का प्रैक्टिस कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उनके लिए ऐसा ही होता है कि एक नाक से हम ज्यादा सांस ले पाते हैं और दूसरे नाक से कम। तो अनुलोम विलोम से क्या होता है? अच्छा, इस पे और एक बात है, जैसे हम सभी को पता है हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो राइट हेमिस्फीयर, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये दोनों पार्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा राइट नोस्ट्रिल एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से। जिन लोगों का लेफ्ट नाक से, जो लोग लेफ्ट नाक से ज्यादा सांस ले पाते हैं, मीन्स कि ज्यादा इनहेल कर पाते हैं, ज्यादा टाइम तक, ज्यादा जोर से, उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। और जिन लोगों का राइट ज्यादा क्लियर है, राइट नोस्ट्रिल ज्यादा क्लियर है, उन लोगों का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तब दोनों नाक से जब हम सांस ले रहे हैं, होल्ड किया, फिर इसी नाक से लेंगे, दोनों नाक से हम लोग सेम फोर्स में ही इनहेल करते हैं, जो कि जब रेगुलर लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, आप लोग करके देख सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जब करेंगे तब हम दोनों साइड से एक समान इनहेल और एक्सहेल आप नहीं कर पाएंगे। तो अनुलोम विलोम से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। और जैसे बताया, दोनों हेमिस्फीयर, दोनों राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का एक साथ सेम तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल का रेस्पॉन्स करते हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और इस प्राणायाम का 3 पार्ट होता है, पूरक, कुंभक, रेचक, जिसका मीनिंग है इनहेलेशन, होल्ड एंड एक्सहेलेशन। इनहेल किया, होल्ड किया, देन एक्सहेल। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ पे 2 चीज लिंक्ड अप होता है, सूर्यवेदा एंड चंद्रवेदा। जो हमारा राइट नोस्ट्रिल होता है वो हीट का प्रतीक है, हीट, तो जिसको सूर्यवेदा बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो कूलिंग का होता है, इसलिए इसको चंद्रवेदा बोलते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, इसको कुछ 1 मिनट ट्राई करते हैं करने को।
चलिए बैक स्ट्रेट करके बैठिए, देन इनहेल, होल्ड, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale deeply, exhale slowly. इसको याद रखने के लिए हम ABBA टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम लोग A पकड़ते हैं, A से सूचित करते हैं, और राइट को B, देन A B B A। इस अनुलोम विलोम प्रोसेस को याद रखने का सबसे इजी टेक्निक यही होता है कि A B B A, और उसके बीच में थोड़ा सा होल्ड करना है, पूरक, कुंभक, रेचक। इसको करते हुए अपने चेस्ट पे ध्यान दीजिए। जब हम इनहेल करते हैं तब चेस्ट एक्सपांड होता है, एंड एक्सहेलेशन के टाइम चेस्ट फिर से अपने पोजीशन में बैक होता है। इनहेल डीपली, exhale slowly, deeply inhale, slowly exhale. जितना हो सके सांस को खींचिए और स्लोली इसको छोड़िए। कंसंट्रेट कीजिए अपनी ब्रीदिंग पे। हमने लेफ्ट पे स्टार्ट किया था, और लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम। अभी हम और एक प्राणायाम में जाते हैं, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। इसका पोजीशन देख लीजिए। इसका पोजीशन देखिए। थंब को कान पे लगा के, देन बाकी चारों उंगलियों को 4 पॉइंट पे देके लंबी सी सांस लेके इसको हम 3 बार करेंगे। मुंह को बंद करके साउंड करना है। Again. One more time.
इस भ्रामरी प्राणायाम से ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। जब हम मुंह के अंदर एक साउंड निकालेंगे तो इसका वाइब्रेशन पूरे बॉडी तक जाता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग होता है इससे, इसका ब्रेन से। और जब हमारा ब्रेन एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि ये है मास्टर सिस्टम, जब हमारा ब्रेन एक्टिवेट रहता है उसका मीनिंग है कि सारा नर्व्स एक्टिवेट रहेगा और जो भी ग्लैंड्स है बॉडी में, जितना भी ग्लैंड्स है, और सब ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस होगा। बहुत सारे लोगों का हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, वो सब इसको प्रैक्टिस करे, इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करे, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो हम नेक्स्ट ओमकारा में ओमकारा करेंगे। लंबी सी सांस, लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ओमकार। One more time. तो यहाँ पे आसन और प्राणायाम का सेशन समाप्त होता है। जो भी आसन का टेक्निक्स है वो हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। प्राणायाम के बारे में भी थोड़ा बहुत जो भी टेक्निक्स है वो बताया गया है। तो अभी सभी को नमन करते हुए आज का सेशन एक मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, योग के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद देती हूँ। बॉटनी डिपार्टमेंट संजीव सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने इतना बड़ा सेमिनार अटेंड के लिए, वेबिनार अटेंड के लिए मुझे सुविधा करके दिया। इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू सर। Thank you, Rupa Kaur, for the performance and the descriptions of different asanas and pranayams. So before we end up, there are 2 questions for you from the participants. Rupa Kaur, are you ready? Yeah. So first question is, what are the benefits of
saluting the sun or the Surya Namaskar. So what are the benefits of Surya Namaskar? मैंने जो पहले भी बताया कि सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी वार्म अप है। कोई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि बैठ के 1 घंटे का एक योगा वार्म अप या फिर वर्कआउट का सेशन करे या फिर कोई भी कुछ भी आसन वगैरह करे, तो वो अगर ओनली सूर्य नमस्कार भी करते हैं उससे फुल बॉडी वार्म अप होता है और इससे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है जैसे पेन हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम, तो वो भी सॉल्व होता है और स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। और ये सूर्य नमस्कार आप लोगों ने देखा जैसे 12 आसन, टोटल 7 आसन इसको सर्कुलर साइक्लिक फॉर्म में करते, तो इसका टोटल हो जाता है 12। तो 12 आसन जब हम करते हैं ईच एंड एवरी पार्ट्स का मूवमेंट होता है। जैसे हाथों का, पेट का जब भुजंगासन करते हैं देन इसका इंटरनल ऑर्गन्स सब टोन अप होता है, स्टिमुलेट होता है। फिर पदहस्तासन जब जो थर्ड पोस्चर है, पदहस्तासन से बेली फैट इसके लिए भी अच्छा है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इन सब में ये सूर्य नमस्कार बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में बोलूं, सूर्य नमस्कार से आपका फुल बॉडी वार्म अप एंड फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है। Thank you. Your next question is, name some asanas which we can perform to get relief from back pain. Okay. First of all, in back pain, we shouldn't do front bending asana. और जो अभी थोड़ा देर पहले हमने दिखाया था अर्ध चक्रासन, वो बैक पेन के लिए होता है। देन सेतुबंधासन और भुजंगासन, तो वो सब बैक पेन के लिए अच्छा होता है। और अगर इन शॉर्ट बोलो, जो भी आसन बैक बेंडिंग और ट्विस्टिंग में हमने यहाँ पे अर्ध मच्छंद्रासन किया, तो वो सब आसन ट्विस्टिंग एंड बैक बेंडिंग ये सब बैक पेन के लिए अच्छा है। ट्विस्टिंग से क्या होता है, हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है और जब फ्लेक्सिबल हो जाता है स्पाइन, तो उसका उस पे पेन होने का जो टेंडेंसी है वो भी कम होता है। मगर हाँ, एक बात है, जिन लोगों का बैक पेन का प्रॉब्लम ज्यादा सिवियर है, बहुत ज्यादा है, या फिर स्टार्टिंग में भी हमको प्रिकॉशन लेना है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम ट्राई कीजिएगा कि फ्रंट बेंडिंग कुछ भी ना करें। फ्रंट बेंडिंग करके किसी भी चीज को उठाना या फिर कुछ भी जो भी काम हो, यहाँ पे जैसे सूर्य नमस्कार में पदहस्तासन है वो भी आपको स्किप करना है, पर्वतासन है वो भी स्किप करना है। जाके फ्रंट बेंडिंग कुछ भी आसन हाँ आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बाकी जो बैक बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, वो आराम से कर पाएंगे। So thank you very much, Rupakar. So we have almost come to the end. Here is an announcement for the participants. So feedback link has been provided to you. I request all the participants to fill up the feedback form and they can get their e-certificates after only if they fill up the feedback forms. So here's the last and not the least vote of thanks. So in the vote of thanks, at the very outset, I would like to thank Dr. Biman Hazarika, Principal, Dhing College, for allowing us and cooperating us in every aspect or every way to make this national webinar on yoga a successful one. We would like to thank Dr. Vinod Kashyap, National Joint Secretary, General Secretary, International Naturopathy Organization, for his motivational speech on yoga and enlightening us with the various aspects of yoga. Next, we thank
Rupa Kaur for performing the different asanas and pranayams and also describing in a very lucid way about the benefits of these uh, asanas and pranayams. I thank my colleagues, my students, and especially I would like to thank Homan Singh Raja, the technical assistant who from the back has been always cooperative with us to perform for organizing this webinar. So with these words, I thank you all, everyone, for participating and making this webinar a grand success. Thank you very much. Have a good day. Thank you.